Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let us start the next topic of Unit 18, which is wave-particle duality. So here is the title of our today topic, wave-particle duality. जैसा कि बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि लाइट behaves as wave as well as particle. Similarly, matter behave as particle as well as wave. In other words, light and matter has dual nature. This is known as wave-particle duality. So, what is the meaning of wave-particle duality? Radiation and matter. बच्चों रेडिएशन हम सम टाइम लाइट भी बोलते हैं, क्योंकि जो ऑर्डिनरी विजिबल लाइट है वो भी रेडिएशन है। रेडिएशन एक जनरल वर्ड है जिसमें विजिबल लाइट के साथ साथ बाकी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम मौजूद है। इससे पहले आपको बता चुके हैं गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और लाइट भी इन रेडिएशन के अंदर मौजूद है। सो रेडिएशन एंड मैटर एग्जिबिट पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल duality. Once again, radiation and matter exhibit particle as well as wave nature. रेडिएशन वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर शो करती है और मैटर पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर को शो करता है. दिस इज़ नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी. सेवरल फिनोमेना बच्चों पढ़ चुके हैं जो वेव की डुअलिटी को कंफर्म करते हैं और मैटर की डुअलिटी को कंफर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंफर्म इट्स वेव नेचर, while photoelectric effect and Compton effect prove the particle nature of radiation. Once again, interference and diffraction of light. These are the two phenomena. These are the two characteristics of radiations which confirm its wave nature. लेकिन photoelectric effect, Compton effect prove the particle nature of radiation. According to wave theory, the radiant energy spreads out continuously in the form of waves. Wave nature का मतलब क्या है? Radiant energy. Radiant energy mean energy of radiation spread out continuously in the form of waves. कि रेडिएशंस के अंदर जो एनर्जी होती है वो वेव्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली स्प्रेडेड होती है. अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, द रेडिएंट एनर्जी स्प्रेड्स आउट इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स और क्वांटा, ईच हैविंग एनर्जी h. According to classical physics, according to wave theory, the radiations are waves. Energy in the radiation spreads out continuously in the form of wave. According to modern physics, according to quantum theory, the radiant energy spreads out in discrete particles or quanta, each having energy hf. हर पार्टिकल की एनर्जी hf है, हर क्वांटा की एनर्जी hf है. Where h is Planck's constant, f is the frequency of these radiations. This theory was given by Max Planck, and this theory, which is the wave theory of radiation, that was given by Maxwell electromagnetic wave theory, जो classical physics की theory है. So once again, what is meant by wave particle duality? Radiation and matter exhibit particle as well as wave like properties. कि रेडिएशन और मैटर्स पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं.
This is called wave-particle duality. Interference, diffraction of light confirm the wave nature of radiation, wave nature of light, while photoelectric effect, Compton effect prove particle nature of radiation. कि ये दो फिनोमेना पार्टिकल नेचर को कंफर्म करते हैं. अब इन दोनों नेचर का मीनिंग क्या है? वेव नेचर का मतलब है कि जो रेडिएशंस की एनर्जी है वो स्प्रेडेड होती है, कंटिन्यूसली होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. और क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या है कि एनर्जी स्प्रेड होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स which are named as quanta, each having energy hf. So this whole discussion confirm that radiation has dual nature. It means radiation has dual nature. It means radiation has wave and particle aspects. के रेडिएशन में वेव प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, रेडिएशन के अंदर पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं. No. Similarly, the experiments of Davison, Germer and G.P. Thomson reveal the wave-like nature of electrons. And in the experiment of J.J. Thomson of E by M, we get particle like nature of electrons. It means matter has also dual. So बच्चों ये एक्सपेरिमेंट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने दी ब्रॉगले हाइपोथेसिस के अंदर पढ़ा है और एक्सपेरिमेंटली इसको कंफर्म किया है. G.P. थॉमसन, सन ऑफ J.J. थॉमसन, बच्चों फादर ने एक्सपेरिमेंट किया विच कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसी का बेटा G.P. थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म किया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्टडीइंग द diffraction of electron from the crystal. So the experiment of Davison, Germer, G.P. Thomson reveal wave nature of electron. In experiment of J.J. Thomson of E by M, we get particle like nature of electrons. So from here we conclude matter has also dual nature. जैसे कि रेडिएशन की डुअल नेचर है, वेव्स एज वेल एज पार्टिकल, इसी तरह से मैटर की डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव. रेडिएशन की वेव नेचर क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन करती है, रेडिएशन की पार्टिकल नेचर क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन करती है. यहाँ पर J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट confirm the particle like nature of electron. This experiment was based on the classical physics. These experiments which confirm the wave like properties of electron are the concepts of the modern physics. So from whole discussion conclusively we can say that radiation and matter have dual nature, wave as well as particle. This new concept is called wave particle duality. Once again बच्चों, radiation and matter exhibit particle as well as wave like properties. This is called wave particle duality. These phenomena confirm the wave nature of radiation. These two phenomena, photoelectric effect and Compton effect, prove the particle nature of radiation. According to wave theory, radiant energy is separated out continuously in the form of wave, proved by these phenomena. Quantum theory of radiations, energy is separated in discrete particles or quanta, each having energy hf, confirmed by photoelectric effect, Compton effect, black body radiation, etc. So this whole discussion
enable us to conclude radiation has dual nature. Radiation has dual aspects, wave as well particle. Similarly, Davison, Germer, G.P. Thomson experiments reveal wave-like nature of electron, and experiment of J.J. Thomson of E by M, we get particle-like nature of electron. So matter has also dual nature. So at the end, it is concluded that radiation and matter have dual nature, wave as well as particle. This concept is called wave-particle duality. This is the new concept about radiation and matter. Complementarity principle given by Neil Bohr. Very important principle, students, about the wave-particle duality. Complementarity principle pointed out by the Neil Bohr after knowing the wave-particle duality. Bohr says both wave and particle aspects, wave and particle aspects mean dual nature of radiation and dual nature of matter, are required for complete description of both radiation and matter. रेडिएशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दोनों एस्पेक्ट्स रेडिएशन के ज़रूरी हैं। मैटर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उसके दोनों एस्पेक्ट्स मीन वेव एंड पार्टिकल लाइक एस्पेक्ट्स का होना ज़रूरी है। दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड एज complementary principle. This principle is known as complementarity principle. अब these aspects of radiation and matter can be revealed through the experiments, but both aspects cannot be proved by a single experiment of radiation or matter. रेडिएशन के दोनों एस्पेक्ट्स एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हो सकते और मैटर के दोनों एस्पेक्ट्स भी एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हो सकते। However, both aspects of radiation and matter cannot be revealed by a single experiment. रेडिएशन और मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए उसके दोनों एस्पेक्ट्स मीन वेव और पार्टिकल दोनों एस्पेक्ट्स का होना ज़रूरी है, दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। रेडिएशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, मैटर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए। हाउएवर बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ रेडिएशन मैटर कैन नॉट बी रिवील्ड बाय ए सिंगल एक्सपेरिमेंट। लेकिन कोई ऐसा एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं है जो रेडिएशंस के दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करे। कोई ऐसा सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं है जो मैटर के दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करे। रेडिएशन के वेव एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। रेडिएशन के पार्टिकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हमें अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसी तरह से मैटर के दोनों एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हमें सेपरेट एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। इस चीज़ को बच्चों अंडरस्टैंड करने के लिए एक वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी या एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कैन नॉट बी रिवील्ड साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट। इन दोनों एस्पेक्ट्स को हम एक ही वक्त में एक ही एक्सपेरिमेंट में नहीं देख सकते। एक वक्त में एक एक्सपेरिमेंट में हमें रेडिएशन और मैटर का एक ही एस्पेक्ट सिर्फ नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज लाइट बीम। कंप्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि इस लाइट को या इस रेडिएशन के बीम को अगर हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स का होना ज़रूरी है। इसका मतलब इस लाइट बीम के अंदर दोनों एस्पेक्ट्स साइमल्टेनियसली मौजूद हैं, लेकिन उनको हम साइमल्टेनियसली रिवील नहीं कर सकते, हम उनको साइमल्टेनियसली वेरीफाई नहीं कर सकते। हम एक एक्सपेरिमेंट में एक ही एस्पेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। अब कौन से दो एस्पेक्ट्स इस लाइट के बीम में हैं? मैंने बताया कि लाइट का बीम वेव एंड पार्टिकल ये दोनों एस्पेक्ट रखता है। अब अगर हम इस लाइट बीम के सामने डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग रख दें
तो फिर वेव एस्पेक्ट ऑफ लाइट बीम कन्फर्म हो जाएगा। और अगर हम इस लाइट बीम के सामने एक मेटेलिक प्लेट रख दें जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस लाइट बीम की फ्रीक्वेंसी से लेस हो, तो फिर उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होंगे इस एमिशन के बारे में, जो ऑलरेडी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में पढ़ कर आए हुए हैं, उनको सिर्फ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन करेगी। फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें इस लाइट का पार्टिकल एस्पेक्ट बताएगा। इसका मतलब है कि इस रेडिएशन के बीम में दोनों एस्पेक्ट मौजूद हैं, इसकी डुअल नेचर है, ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है। लेकिन हम ये कन्फर्म एक एक्सपेरिमेंट से नहीं कर सकते कि इट हैज़ डुअल नेचर। सो वी हैव टू परफॉर्म एट लीस्ट 2 एक्सपेरिमेंट, one for the confirmation of its wave nature and other for the confirmation of its particle nature. Let us, we put diffraction grating here, diffraction grating. Now the diffraction phenomena, result of this experiment will enable us to reveal the wave aspect of light beam, confirm the wave nature of this light beam. So this experiment will confirm wave aspect. And if here is a light beam and we put a metal surface here, photoemissive metal here, ejection of electrons from the metal surface, and the experimental result of this emission tells us particle aspect of light, wave aspect of light. It means this experiment reveal wave aspect of light, this experiment reveal particle aspect of light. जैसा कि हमने कहा है, दोनों एस्पेक्ट्स रेडिएशन के कैन नॉट बी रिवील्ड साइमल्टेनियसली इन सिंगल एक्सपेरिमेंट। एक वक्त में एक एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन रिवील हो सकता है, किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेडिएशन का दूसरा एस्पेक्ट रिवील हो सकता है। सिमिलरली both aspects of matter are also required for the complete description of matter. Both aspects of matter can never be revealed simultaneously in a single experiment. You have to perform at least 2 different experiments to confirm particle nature of matter and wave nature of the particles. How we confirm the particle nature of electron? Suppose here are beam of electrons as performed in J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट। बच्चों केमिस्ट्री में जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ कर आए हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज बोलते हैं। आपको पता है बच्चों कि गैसें कंडक्ट नहीं करती नॉर्मल प्रेशर पे, लेकिन जब हम किसी गैस को एक ट्यूब में इनक्लोज कर दें, उस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हों, कैथोड और एनोड, और गैस के प्रेशर को वेरी लो कर दें, कितना कम कर दें, अबाउट 0.01 टॉर कर दें, तो उस गैस के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। और उस वक्त अगर हम इलेक्ट्रोड और एनोड के दरमियान हाई पोटेंशियल अप्लाई करें तो कैथोड से रेज एमिट होंगी, जिनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। उनकी नेचर को स्टडी किया गया, पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट confirm the particle aspect of this electron. The same beam of electron may have another aspect which is wave aspect. इस beam of electron में 2 aspect मौजूद हैं। इस beam of electron के अंदर particle aspect भी है, इस beam of electron के अंदर wave aspect भी। लेकिन अगर हमने particle aspect reveal करना है तो we place a wheel pedal here. So this is a wheel pedal. जब कैथोड रेस इस व्हील पैडल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये व्हील पैडल रोटेट करेगा। इट मीन्स दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच हैज़ एनर्जी एंड मोमेंटम। और जब ये पार्टिकल इस व्हील पैडल के साथ कोलाइड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये व्हील फिर क्या करता है, रोटेट करता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट confirm the particle aspect of electrons. If we have a beam of electron here, I have told you this beam of electron can only be completely described by both aspects, wave and particle, and that depends on the experiment you perform. इस वक्त तक दोनों एस्पेक्ट इसमें हैं,
लेकिन कौन सा एस्पेक्ट रिवील आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. सपोज यू पुट अ निकल क्रिस्टल हेयर और एनी अदर मेटेलिक क्रिस्टल. हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल से स्कैटर करेंगे और उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी एट सम एंगल, और उन इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी मिनिमम होगी एट सम अदर एंगल्स. इट मीन्स कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल से स्कैटर करेंगे तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की पीक्स ऑब्टेन होंगी. इट मीन्स कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से डाइफ्रैक्ट करेगा इन द सेम वे एज एक्स रेज डाइफ्रैक्ट फ्रॉम एनी अदर क्रिस्टल. सो दिस एक्सपेरिमेंट रिवील the wave nature of electron. We have not a single experiment which can simultaneously tells us particle and wave aspect of the matter. So this principle is known as complementarity principle. जैसा कि बच्चों बताया है कि वेव और पार्टिकल ये दोनों एस्पेक्ट्स मैटर और रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड हैं. दोनों एस्पेक्ट्स रेडिएशन और मैटर के साइमल्टेनियसली एक ही एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हो सकते. रेडिएशंस के दोनों एस्पेक्ट को देखने के लिए हमें दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और मैटर के दोनों एस्पेक्ट्स को देखने के लिए हमें दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट करना. अब जैसा कि मैंने बताया है कि लाइट कब वेव बिहेव करती है. लाइट सोर्स से निकलती है और जब डिटेक्टर के ऊपर जाकर स्ट्राइक करती है तो दिस इज़ द वेव नेचर ऑफ द लाइट. सपोज विजिबल लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द सोर्स और हमारी आँख इसको डिटेक्ट कर रही है, इसको देख रही है. इस लाइट को देखना, इस ऑब्जेक्ट का नज़र आना, इस लाइट की वेव नेचर को प्रूव कर रहा है. लेकिन लाइट का किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करना, ये इसकी पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है. इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो फिर पार्टिकल बिहेव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेट करते हैं वेव नेचर शो करते हैं जब वो किसी मेटेलिक क्रिस्टल से इंटरेक्ट करते हैं. सो दिस इज़ द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी.